Yes, sir. Okay, so good morning again to all of you. Please try to come a little early, within 5 minutes of the lecture start time. So right now we have 28 participants, so still there are 4 or 5 people missing. Where are they? Went for breakfast? Okay, no problem. So we will start now. Yesterday we looked at the definitions and some advantages of cloud computing. So just having a brief uh, revision of what we studied. So this was the actual definition proposed by National Institute of Standards and Technology, United States of America, which is recommended to use anywhere, wherever you use cloud computing. So we saw this definition yesterday. Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. By the resources, we mean networks, servers, storage, applications and services, everything which is covered in cloud computing. That can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. So the management does not have to do anything, and the user does not have to interact with the service provider. Everything should be automatic and dynamic. So this is what the cloud computing is, and it is basically based on internet. So where does the term cloud computing came from? Yeah, bolo. Sir, can you repeat? Sir, can you repeat the meaning of ubiquitous? The previous slide. Okay. So yesterday also we discussed this. So ubiquitous is which is found everywhere. So it's global. In simple words, you can call it global. So cloud computing is the model for enabling global, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. So stopping here, by breaking this whole definition into two parts. The first part is for the global, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources. Configurable computing resources are your network, servers, storage, applications, and services, everything which comes under the cloud computing. And these can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. जो इंटरेक्शन हमारा होता है वो उसके लिए हमें सिर्फ कंप्यूटर पे लॉगिन करना है और सिलेक्ट करना है व्हाट टाइप ऑफ सर्विस वी नीड. उसके लिए हमें मैनेजमेंट को और कुछ डिटेल्स नहीं देने, किसी से कुछ इंटरेक्ट नहीं करना है, तो मिनिमल फंक्शन होना चाहिए. तो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग. It is based on internet. So क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म आया कहाँ से? एक्चुअली आया कहाँ से? क्लाउड स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इन दिस क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड इज मेटाफर फॉर इंटरनेट. तो ऐसा एक फनी वीडियो आपने सभी ने देखा होगा जिसमें एक पर्सन है, वो इंटरव्यू में बता रहे हैं कि सब कुछ क्लाउड में स्टोर हो जाता है. तो वो क्लाउड का मतलब समझे कि क्लाउड मतलब बादल होते हैं. तो वो बताते हैं कि अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल ली है कि वो सब कुछ बादलों में स्टोर करने लगे.
So by cloud, you doesn't mean actually the cloud, it is the internet, because internet is everywhere in cloud computing. This name was actually given by in a conference in around 2000, 2004-5 era. Google CEO and Amazon CEO at that time, they introduced this term cloud computing. We will see the history of cloud computing today from where it started. But the cloud is metaphor for the internet. It is an abstraction of the internet and the infrastructure that underpins it. So जो भी infrastructure है, जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, that is cloud. Or computing is normal computing, what services we are using, what are the requirements of for doing anything which we want to do by using this cloud. So computing refers to the service provided by a sufficiently powerful computer capable of providing a range of functionalities, resources and storage. किसी भी चीज को करने के लिए रिसोर्स चाहिए, स्टोरेज चाहिए और जो फंक्शनैलिटीज हैं जो हमें करना है उसको हम बोलेंगे कंप्यूटिंग. तो इन दोनों को पुट टुगेदर द क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस टर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस. ये जो एग्जाम्पल्स थे ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे, तो एक बार और आप याद रखें. ऑन डिमांड, सेल्फ सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग के 4 एग्जाम्पल जो हैं वो हैं, सॉरी 4 एडवांटेजेस जो हैं वो है ऑन डिमांड, सेल्फ सर्विस. आप अपनी डिमांड, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अपने खुद से उसको कभी भी यूज कर सकते हैं. You do not have to buy the whole infrastructure. It's on demand and self service. Okay. So हाँ देवेंद्र बोलो. Devendra Tankolia raised hand. Okay, if you want, you can ask anything. Otherwise, we will continue. No, sir. All right. So, second advantage is broad network access. It can be used from everywhere. जो ubiquitous term थी, global. The cloud is everywhere, so you can use it from your home, your office, or if you have went to another country, then you can access your system from that country as well. So this is broad network access. And third and fourth is resource pooling and rapid elasticity. So resource pooling, may remember it by the term pooling, like it's a pool of various infrastructure. By resource pooling, we mean the cloud service provider has a pool, and in that pool, it has various resources. जो भी requirement है, resources, servers, storage और services, सब कुछ उसके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास में इट इज अवेलेबल इन अ पूल. अब शेयर्ड बेसिस पे उस पूल को मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस करते हैं. एक यूजर को एक चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो ले लेगा, दूसरे यूजर को दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट है वो ले लेगा, और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो लेते जाएंगे. So this is resource pooling. Rapid elasticity is you can just increase or decrease the amount of service or the amount of infrastructure you need. आपको यदि
कम स्टोरेज चाहिए, आज आपने कम स्टोरेज ले लिया, कल आपको ज्यादा चाहिए, कल आपने ज्यादा ले लिया, परसों आपको लगा कि हमें फिर कम चाहिए, यू कैन चेंज इट any day. So this is rapid elasticity. If you want to change this in physical world, you have to go and buy a new equipment, set up the entire servers and set up the entire data center. So which is very costly and also very painful. These are the four examples of cloud computing which everyone should remember. Okay, so now we will see how cloud computing actually started. So cloud is basically internet. Everything depends on the internet. So 1 minute. Yes. So the origin of cloud is considered to be actually started in 1969 when ARPANET was born. So ARPANET was basically the first wide area network introduced in USA by the defense research for the defense research purpose. So this was the time when cloud computing is supposed to be started. ARPANET क्या था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट वाइड एरिया नेटवर्क का लेकर के आए थे यूएस डिफेंस वाले टू कम्युनिकेट बिटवीन द डिफरेंट पोस्ट विच दे हैव एक्चुअली फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट, रियल टाइम वो कम्युनिकेट कर सके, यूज कर सके वहाँ के कंप्यूटर्स, वहाँ के रिसोर्सेस. इसलिए ARPANET डिफेंस रिसर्च ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसको कि फिर इसी प्रोजेक्ट के बाद TCP/IP का यूज स्टार्ट हुआ था. तो बाद में इससे जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया अराउंड 1980s. In 1981, TCP/IP protocol suite were established. In 1983, ARPANET, PRNet, and SATNet, these communicated through TCP/IP. So 80s में सबसे पहले TCP/IP के थ्रू कम्युनिकेशन चालू हुआ, इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसमिशन कंट्रोल हुआ. और 1984 में DNS टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई. तो DNS जो डोमेन नेम सिस्टम हम यूज करते हैं आज भी, जो वेबसाइट के लिए हम एक डोमेन नेम यूज करते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984. और 1986 में ईमेल सर्विसेज स्टार्ट हुई. 1989 में फर्स्ट नेटवर्क ऑपरेटर PSINet was founded. एंड 1995 में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन की शुरुआत हुई. तो इनिशियली इन दिस पीरियड ये सब अपना अपने रिसोर्सेज खुद ही मैनेज करते थे, लेकिन इनने नेटवर्क वाइड कर लिया था इंटरनेट के थ्रू, ताकि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे के यहाँ पे क्या हो रहा है वो देख सके. लेकिन इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता था वो अपना रहता था, ये किसी को बाहर से हायर नहीं कर रहे थे दूसरी जगह से कि यहाँ से सर्विस ले ले क्लाउड कंप्यूटिंग की. 1991 में www was officially open to public, and the first network search engine Archive was launched in 1990. So Archive was the first search engine. And in 2000, the dot-com bubble burst, which is the start of our present era of internet. 2000 के बाद से इंटरनेट का जो बर्स्ट हुआ है वो 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ. तो फेसबुक लॉन्च होने के बाद से फिर क्लाउड कंप्यूटिंग
जो मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग है वो स्टार्ट हुई है अराउंड 2004-2005, जिससे कि हमें करंट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं. In 2014, HTTPS was officially launched, and now cloud computing was all the companies, they started using services of cloud by managing their resources at different places and using multiple resources at the same time. So this was the brief history of the evolution or the foundation of the cloud. So it started in 1969, and it is considered to actually the modern cloud computing. Actually, it is considered to start in 2004. अब ये तो जो हिस्ट्री हमने देख ली, अब ये कंप्यूटिंग का हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस तरीके से हम पहले कंप्यूटर्स यूज करते थे और किस तरीके से हम अब कंप्यूटर यूज करने लगे हैं. तो ये स्टेजेस ऑफ कंप्यूटिंग है. सबसे पहली स्टेज कंप्यूटर की क्या थी? पैरेलल कंप्यूटिंग के पहले भी जो स्टेज थी जिसको हम बोलते हैं कि कंप्यूटिंग. तो कंप्यूटिंग में क्या, एक जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ तो आप एक उसको आपके पास कोई प्रॉब्लम आई तो कंप्यूटर को एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करने के लिए दी. इट टेक्स आफ्टर टेकिंग सम टाइम इट गिव्स यू द आंसर टू द प्रॉब्लम. सो एक बार में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने आपको करके दे दिया. सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ कंप्यूटेशन. नाउ द नेक्स्ट थिंग came into existence was parallel computing. Parallel computing में क्या, now the problems have raised, उनका लेवल भी बढ़ने लगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आने लगी. तो क्या करें, तो मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज करने पड़ते थे पहले कि एक कंप्यूटर से काम नहीं चल रहा. फिर थोड़े पावरफुल कंप्यूटर आया तो क्या चालू किया हमने, पैरेलल कंप्यूटिंग चालू किया. एक प्रॉब्लम है उसको डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. लाइक यू सी इन दिस फिगर, देयर वाज वन प्रॉब्लम, इट वाज डिवाइडेड इनटू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. ओके, एंड देन एक एक पार्ट को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया गया और उन सब पार्ट्स को सॉल्व करके और कंबाइन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल गया. ठीक है, दिस वाज डन ऑन सेम कंप्यूटर. एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल जॉब्स आप रन कर रहे हैं एक साथ. इसका मीनिंग ये समझिए. द नेक्स्ट पैरेलल कंप्यूटिंग के बाद में जो नेक्स्ट बेटर थिंग आई वो हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या हुआ है कि आप लैन बनाने लग गए, लोकल एरिया नेटवर्क. आपके पास एक जॉब, आपको एक जॉब मिला है कि ये जॉब आपको कंप्लीट करना है. सो व्हाट यू डिड इज यू डिवाइडेड दैट जॉब इनटू सब जॉब्स. So here we have sub job 1, sub job 2, sub job 3. अब इन तीन सब जॉब्स को हमने तीन अलग अलग कंप्यूटर्स को सॉल्व करने के लिए दे दिया है और ये तीनों कंप्यूटर आपके एक लैन से कनेक्ट हैं. They are in the same local area network, so they can simultaneously solve these subjobs and then they can communicate with each other and finally your job is done. So distributed computing was next better thing than parallel computing. After distributed computing came the concept of grid computing. ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या हो गया, ग्रिड कंप्यूटिंग में ये हो गया है कि बहुत सारे
हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जैसे पीसी भी है, लैपटॉप भी है, एक वर्क स्टेशन भी है, और भी जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, उन सबको हमने शेयर करके एक कॉमन सर्वर, एक कॉमन डेटा सेंटर बना लिया। और उस एक जॉब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स जॉब आया, वो हमने इसको दिया। यहाँ पे जो यूजर है वो सोच रहा है कि मैं सिर्फ एक कंप्यूटर को ये जॉब दे रहा हूँ, लेकिन उस कंप्यूटर के पास में वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि उससे कनेक्टेड है। तो ये हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग हो गया कि एक पावरफुल कंप्यूटर, कंसीडर दिस एज अ पावरफुल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, वी आर providing a job to this and it is giving us a solution, but this computer has access to various resources here. Whatever is needed is connected to your supercomputer. This type of concept was called grid computing. ग्रिड कंप्यूटिंग से ही फिर क्लाउड कंप्यूटिंग बॉर्न हुआ, क्योंकि ये स्पेसिफिक था, जिनसे कनेक्ट कर रखा है, या तो लैन बना दिया है या वैन बना दिया है। बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर. There are different jobs, 1, 2, 3, 4 jobs. There are different users. These are 3 users. They are using the resources simultaneously. Multiple jobs are performing simultaneously, and everything is available to every user. This, this is the concept of cloud computing. So these are the stages of computing. We should remember parallel computing, then distributed computing, then grid computing, then cloud computing. Sir, please repeat grid computing once again. Okay, आपको इसके definition से बता देता हूँ मैं. Grid computing aggregate the available computing resources on LAN or internet, making end users or applications feel that they are using a powerful computer. ठीक है, जो यही समझा रहा था मैं डायग्राम से कि ग्रिड कंप्यूटिंग ने क्या किया है, एक लैन के थ्रू या एक वैन के थ्रू सारे आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस थे उनको कनेक्ट किया, लेकिन जो एक एंड यूजर है वो आपके रिसोर्सेज नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अपना जॉब देख रहा है कि एक जॉब उसने आपको दिया. सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ लाइक क्लाउड कॉन्सेप्ट इन ग्रिड कंप्यूटिंग, कि हमारे सारे रिसोर्सेज कनेक्ट करके हमने एक जगह दे दिए, और जो यूजर है वो अपना जॉब जो भी उसको परफॉर्म करना है वो उसने रिक्वेस्ट किया, और उसका जॉब कंप्लीट होके उसको सॉल्यूशन मिल गया. तो he thinks that he is giving his problem to a very smart or very powerful computer. उसके नेक्स्ट थिंग में इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए फिर क्लाउड कंप्यूटिंग चालू किया हमने, जिसमें कि मल्टीपल यूजर्स आर कनेक्टेड एट द सेम टाइम. रिसोर्स पूलिंग चालू हो गया कि बहुत सारे रिसोर्सेस का एक पूल बना लिया, और उसमें से जिसको जितना यूज करना है साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर्स वो यूज कर सकते हैं. सो दिस वाज बेटर देन ग्रिड कंप्यूटिंग, इज क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, पैरेलल कंप्यूटिंग, ये जो अभी हमने डायग्राम में देखा उसको एक बार यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है. that in parallel computing, one minute, क्या है मैडम, तो ये देना है.
Okay, guys. Sorry for the small interruption. So, parallel computing में क्या है? One large problem is broken into many smaller problems, and these smaller problems are solved by the same computer without using any other resources. ये हमारा सबसे पहले स्टार्ट हुआ. Then distributed computing. Distributed computing में problem is divided into sub jobs and distributed to different computers on different networks. ग्रिड कंप्यूटिंग जो अभी हमने देख लिया, लैन और वैन के थ्रू रिसोर्सेज को कनेक्ट किया. एंड देन क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें कि मेथड ऑफ शेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर which can connect huge resource pools and provide IT service. तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज जो 4 मेजर टेक्नोलॉजीज हैं उनका कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया. तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. These questions you should be able to answer now. How does the term cloud computing came into existence? तो क्लाउड क्या है और कंप्यूटिंग क्या है और ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ये डिस्कस किया हमने. What are the advantages of cloud computing? What is resource pooling? And what is on-demand self-service? These are some small questions. You should try to write them down and try to write the answers as well, all of you. Okay, किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं? मैं अटेंडेंस का आपका स्क्रीनशॉट ले लूं. If anybody has any doubts, you can ask now. No, sir, no doubt. Okay, so just wait for 1 minute. Let me take your attendance. आप लोगों की ट्रेनिंग फाइनल हो गई है, सबको पता चल गया है. 24 अगस्त नेक्स्ट मंडे से आप लोगों की माइक्रो फोकस की जो पेंडिंग ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी. और हाँ, वो रजिस्ट्रेशन की लिंक ओपन हो गई. सर मॉर्निंग चेक करा था. यस सर, ओपन हो गई है, अभी चेक किया था. कल मैंने उन लोगों को जाके बहुत बोला था कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो दे टोल्ड मी कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक हो जाएगी सर. तो फिर रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए, तो रजिस्ट्रेशन भी सब करवा ले अपने. 1-2 दिन में ये वीकेंड तक सब करवा लें, जिसको कोई इशू नहीं है, सब कंप्लीट कर लें. नेक्स्ट मंडे से फिर माइक्रो फोकस की ट्रेनिंग में अच्छे से जाए, पूरा बढ़िया तैयार होके. फाइनली हम लोगों ने कर लिया और उसका पूरा फुल यूटिलाइज करें, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. So, can you share the syllabus? Syllabus of what? Micro Focus, Module 5. Like we just know the name, tag name. Like this is Micro Focus Module 5. We don't know the syllabus, actual syllabus. आपका भी टीचर नहीं है ना? So, sir, it doesn't matter, sir. At least we have the syllabus so that we can go through the syllabus at least. ठीक है, मैं करता हूँ. वो लिंक ओपन नहीं हुई है. हाँ सर. सर वो लिंक का भी इशू है सर. कहाँ पे नेविगेट करना है सर? पोर्टल पे मुझे दिख नहीं रही है भाई.
चंद्रेश सर, बता दे exam? अगर तुझे पता है तो। अरे वो सर एग्जाम फीस कब वाला हो रहा section है ना, एक बोलो एक बार में। हाँ बोलो, हाँ बोलो चंद्रेश। फीस वाला जो सेक्शन है वहाँ पे एग्जाम फॉर्म में? एग्जाम फॉर्म तो फिल कर दिया होगा, उसके नीचे फीस का भी सेक्शन है, फीस पेमेंट का। क्या? हाँ तो वहाँ पर, वहाँ पे जाएगा वहाँ तो पर फिर वहाँ से फी पेमेंट कर सकता है। आप लोग आपस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्कस की बात कर चल लो, रही है। क्योंकि अभी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लिस्ट आ गई थी मेरे पास, देखा था मैंने, तो इट मीन्स कि रजिस्ट्रेशन चालू हो। अरे फीस तो 0 बता रहा है उसमें, रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म तो है ही नहीं। एग्जाम फॉर्म नहीं, वो क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक। जिसने एग्जाम एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लास्ट कहाँ सेम की? का, अब अगले सेम का भरना है ना तुमको रजिस्ट्रेशन, लास्ट सेम का। हाँ तो सर वो फॉर्म नहीं आया अभी। सर वही उसकी लिंक। सर फीस तो प्रीपेड है, 0 बता रहा हमारी। अच्छा, फीस 0 बता रहा है। हाँ सर, और फॉर्म भी नहीं है रजिस्ट्रेशन का। शायद इनने लॉकडाउन की माफ कर दी सर। अबे वो पिछले सेम की है। नए सेम की इंफॉर्मेशन अभी उसमें नहीं आई है। हाँ सर, नहीं आई है। सर इंटरफेस में थोड़ा और पैसा खर्च करने को बोलो, थोड़ा इतना कर ही दिया है तो सर थोड़ा ढंग का बना दें।